ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਮਦਰਸ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Yes, very true. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਚੁਪਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੈ। Yes. ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बुक ऑफ अज़ाया में जाओगे, चैप्टर 66 वर्स 13 विच इस तरह लिखा है, As one whom his mother comforts, so I will comfort you। पंजाबी विच भी मैं पढ़ना चाहांगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਦਿਨਾਈ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਪਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। Amen. Amen. ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਨ ਪੜਨ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਮ 141 ਵਰਸ 1 to 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਸ 1 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਧੂਫ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਵਰਸ, हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਵਰਸ 4, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Yes, Lord. Hallelujah. ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਗॉड ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਆਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਣ। हालेलुया। Hallelujah. आओ मिलके भजन गाइए। आओ अपनी ज़बान पवित्र करिए, अपने होठों को पवित्र करिए और मिल के प्रभु जी की हमदो सन्ना गीत गाइए। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ। जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, हाथ चुक के सुनना दुआ, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, मुँह ते मीर मान बिता, मेरे वल तुम छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तुम छेती आ। दिल न होवे मेरा बदते मायल, दिल न होवे मेरा बदते मायल, बदा नाल राजा, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ। मेरे वल तू छेती आ। हालेलुया। 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 ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ।
प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे ऊंचे नाम में आपको खूब बरकत मिले। आज के इस शुभ अवसर पर, मदर्स डे के अवसर पर, आज प्रभु जी ने जो हमें संदेश देने जा रहे हैं, जो प्रभु जी संदेश दे रहे हैं, उसका टाइटल है द पावर ऑफ ए प्रेइंग मदर। द पावर ऑफ ए प्रेइंग मदर, एक प्रार्थना करने वाली माता की शक्ति। तो आइए अपनी रूहों को जोड़े प्रभु के इस वचन के साथ। नेपोलियन का नाम किसने नहीं सुना? नेपोलियन जो एक सेनापति था, जो फ्रांस का किंग भी रहा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उसने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी वार्स लड़ी और उसने बहुत सारी जीत प्राप्त की। He was one of the greatest military commander in the history of mankind. आज भी बहुत सारे मिलिट्री स्कूलों में जो उसकी स्ट्रेटेजी थी वार लड़ने की, वो सिखाई जाती है। नेपोलियन ने माता के बारे में एक बात कही थी, आइए देखते हैं क्या उसने बोला था। उसने कहा था, द फेट ऑफ ए चाइल्ड इज ऑलवेज द वर्क ऑफ हिज मदर। एक बच्चे का भाग्य हमेशा उसकी माँ का काम होता है, यानी कि एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो माँ ही बनाती है। ये माता और बच्चे के बीच में जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है उसको दर्शाती है। दरअसल माँ ही होती है जो बच्चे को बचपन से, जब वो बहुत छोटा होता है, उसके पास रहती है। और ब्रदर्स सिस्टर्स, किसी भी स्त्री के लिए कितने बड़ी प्रिविलेज की, कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो माता बन सकती है। और प्रभु का वचन में बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमें परमेश्वर से विरासत में मिलते हैं। भजन संहिता 127 पद 3, चिल्ड्रन आर गॉड्स लव गिफ्ट। बच्चे परमेश्वर का प्यार का तोहफा है। दे आर हेवंस जनरस रिवॉर्ड। वो माता के शरीर से मिलने वाला फल है जो स्वर्ग से आता है। और इसी तरह अगर प्रभु के वचन पढ़ें तो एक आदर्श माता, एक आदर्श पत्नी के बारे में भी हमें पता चलता है। प्रभु के वचन में ये है, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 31, नीति वचन अध्याय 31। ऐसी माता, ऐसी स्त्री के बारे में लिखा है जो आदर्श है, वह शक्तिशाली है और लोग उसको मान देते हैं। 26, जब वह बोलती है वह विवेकपूर्ण रहती है, उसकी जीभ पर उत्तम शिक्षाएं सदा रहती हैं। 27, वह कभी भी आलस नहीं करती है और अपने घर बार का ध्यान रखती है। He watches over the affairs of her household. और अंत में लिखा है, her children arise and call her blessed. जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसके बच्चे स्वागत में खड़े हो जाते हैं और उसे बरकत भरी कहते हैं। हर हस्बैंड आल्सो, और उसका पति भी उसको बरकत से परिपूर्ण बोलता है। एंड ही प्रेजेस हर, और उसकी प्रशंसा करता है। और ब्रदर्स सिस्टर्स, आज के इस जमाने में माता का जो काम है कोई इजी टास्क नहीं है, आसान काम नहीं है। एक जमाना था जब माताएं घर में रहते बच्चों की देखभाल करती थी और पिता जो है बाहर से जाकर कमाई करके घर के लिए भोजन और दूसरी चीजें लाता था। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं वो घर से बाहर जाकर भोजन भी लाती हैं और घर में आकर बच्चों के लिए भोजन तैयार भी करते हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, उन्हें होमवर्क में भी मदद करती हैं, सफाई करती हैं, क्या कुछ नहीं करती। शायद आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे एप्लायंसेस आ गए हैं जो माता की इस काम में मदद करते हैं। वी हैव वॉशिंग मशीन्स, वी हैव डिश वॉशर्स, वी हैव आटा गूंदने वाली मशीन, क्या कुछ नहीं आ गया। पर आज की माता पहले वाली माताओं से कहीं बिजी है। किस लिए बिजी है? क्योंकि वो ना सिर्फ अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को समय देती है, बल्कि घर को भी पूरा समय देती है। जरा सोच के देखिए, एक माता जो 4-8 घंटे घर से बाहर जाती है, अपने प्रोफेशन के लिए समय देती है, घर आ चुकी होगी तो थक चुकी होगी, उसके पास समय भी नहीं होगा। पर आज के जमाने में भी इट इज द मदर हु इज द मेनली हाउस कीपर। माँ ही है जो घर के
बहुत सारे काम संभालती है। नो डाउट कई ऐसे पति हैं, ज्यादातर पति अपनी पत्नी की मदद भी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो माता ही सारे काम करती है। वो घर की देखभाल करती है, घर को साफ रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को पढ़ाई में मदद करती है, और उसका जो दिन है सुबह से लेकर रात तक उसका दिन होता है, सारा दिन वो इस काम में लगी रहती है। ऐसी माताओं को ब्लेस करने का दिल करता है। मुंह में उनके लिए एक ही बात निकलती है, दे आर सुपर मॉम्स, दे आर सुपर ह्यूमन। उन जैसा कोई नहीं। जहां वो अपने एजुकेशन, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन के लिए समय निकालती है, वैसे ही वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भी समय निकालती हैं, और सब कुछ वो खुद ही करती हैं। ज्यादातर जो माताएं घर से बाहर नहीं जाती उनको होम मेकर्स कहते हैं, और मैं सोचता हूँ उनके लिए सबसे अच्छा नाम है होम क्वीन। वो घर की रानी है। आज जो स्टे एट होम मॉम है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इस वजह से शायद उनका दर्जा भी कम होता जा रहा है। शायद उनको हम छोटी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो घर में ही सारा दिन रहती हैं, दूसरी माताओं की तरह घर से बाहर जाकर कमाई करके नहीं लाती हैं। और माय ब्रदर सिस्टर्स, इस तरह की माताएं जो आजकल एक रेयर ब्रीड है, जो एक दुर्लभ प्रजाति है, वो भी किसी से कम नहीं है। दोनों माताएं, तरह की माताएं जो घर से बाहर जाके काम करती हैं या घर में रह के बच्चों को संभालती हैं, दोनों ही रेयर ब्रीड्स हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, जो उनको अगर ध्यान से देखें तो दे आर अनसीन मिशनरी, और ऐसी मिशनरी हैं जो देखी नहीं जाती, जिनके लिए कोई रिवॉर्ड भी नहीं है। वो सेल्फलेस सर्विस सारी उम्र करती रहती है, कुछ चाहती नहीं है बच्चों से, सिर्फ चाहती है तो अपने पति से, बच्चों से थोड़ा प्यार चाहती है, लेकिन वो लगी रहते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो पुराने जमाने में जब औरतें घर से बाहर काम नहीं करती थी, हम घर में रहती थी, उनकी देख रेख में कई ऐसे बच्चे बड़े हुए जो कल में बड़े होकर बहुत बड़े लीडर बने, जिन्होंने इतिहास बदल डाला, जिन्होंने देशों को बदल डाला। ऐसे एक इंसान थे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिका में जो स्लेवरी की प्रथा थी उसको खत्म किया था। आइए देखिए उन्होंने अपनी माता के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा है, ऑल दैट आई एम, मैं जो भी हूँ, आई होप टू बी, और यह उम्मीद रखता हूँ, आई ओ टू माई एंजल मदर, मैं अपनी परी जैसी, एक स्वर्ग दासी जैसी माँ का एहसान मंद हूँ। हालेलुया। बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अननोन है, जो छिपे अपने घर की देखभाल कर रही हैं, शायद उनका हम नाम भी नहीं जानते। इसी तरह अगर पवित्र बाइबल में देखें तो पवित्र बाइबल में भी हमें कई ऐसी माताओं का जिक्र मिलता है जिनका हमें नाम तक नहीं जानते। उनके बच्चों को जानते हैं, उनके बच्चों ने जो बड़े बड़े काम किए उनको जानते हैं, लेकिन उस माता का नाम कोई नहीं जानता। किंग डेविड ने एक जगह लिखा है, भजन संहिता अध्याय 86 वर्ष 16, साम 86 वर्ष 16, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, टर्न टू मी एंड हैव मर्सी ऑन मी। हे प्रभु, मेरी तरफ देखो, मेरी सुनो, मुझ पे दया करो। शो योर स्ट्रेंथ ऑन बिहाफ ऑफ योर सर्वेंट, अपने दास के ऊपर अपनी शक्ति लेके आओ। सेव मी, मुझे बचाओ, बिकॉज आई सर्व यू जस्ट एज माई मदर डिड, मैं तेरी उसी तरह सेवा करता हूँ हे परमेश्वर जिस तरह मेरी माता तेरी सेवा करती थी। क्या आप किंग डेविड की माता का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस माता का नाम पवित्र बाइबल में है ही नहीं। अगर किंग डेविड के ऊपर सर्च करने की कोशिश करें तो कम से कम 66 बार किंग डेविड का नाम आया। यहाँ तक कि उसका जो परिवार है उसका नाम भी पवित्र बाइबल में आता है। जैसे उसका पिता का नाम जैसी था, उसके 6 बड़े भाई थे, 2 छोटी बहनें थी, और इन सब के नाम आते हैं। लेकिन ये बड़ी मिस्ट्री की बात है कि उसकी माता का नाम कहीं भी नहीं आया। सिर्फ एक ही बार जिक्र आया जब उसने कहा, सेव मी बिकॉज आई सर्व यू जस्ट एज माई मदर डिड। हे परमेश्वर, मुझे बताओ जैसे मेरी माता आपकी सेवा करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बैतलहम की औरत थी, वहां जन्मी, वहां पैदा हुई, लेकिन उसके अलावा उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता।
पर इतना पता चलता है कि उसने अपने बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसी वजह से जब किंग डेविड अभी शेपर्ड ही थे, उन्होंने लायन को मारा, बियर्स को मारा और बड़े बड़े जायंट्स को मारा, और बाद में जब किंग बने तो उन्होंने किंग बन के 40 साल इजराइल की कौम की सेवा की। और परमेश्वर के इतने प्यारे बच्चे थे उनके बारे में परमेश्वर ने कहा, ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, एक ऐसा इंसान जो मेरे दिल की बात करता है। माय ब्रदर सिस्टर, शायद उनका हम नाम न जानते हो, लेकिन उस माता का जो प्रभाव था अपने बच्चे के ऊपर, वो आज भी हम जानते हैं। कितनी जनरेशन हो गई, कितने साल हो गए, फिर भी हम उसको नहीं भूले। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसकी जो फाउंडेशन होती है, जब वो बहुत छोटा होता है तब से बननी शुरू हो जाती है। और ये वही समय होता है जब माता ही उसके पास रहती है। आज भी जो काम करने वाली औरतें हैं, माताएं हैं, वो मैटरनिटी लीव के लेके बच्चों के साथ रहती हैं, क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन टाइम, और सरकार भी उनको छुट्टी देती है। माय ब्रदर सिस्टर, यही रीजन है कि बच्चा जो कुछ सीखता है माँ से सीखता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पहले 5 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही बात है, बच्चा माँ से सीखता है। इसीलिए हम अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, फादर टंग नहीं कहते, क्योंकि जो भी भाषा हमने सीखी है वो माँ से सीखी है। इसी तरह एक और माता का जिक्र आता है बुक ऑफ जजेस में, न्यायों की पोथी, न्यायों अध्याय 13 में, वर्ष 2 से पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति सोरा नगर का निवासी था। उस व्यक्ति का नाम मानव था। वह दान के परिवार समूह में था। मानव की एक पत्नी थी, किंतु वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। सो ये एक इंसान था, मानव जिसका नाम था, उसकी एक पत्नी थी जो बांझ थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। वर्ष 3 में लिखा है, यहोवा का दूत मानव की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हो, किंतु तुम गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। सो एक बेटे का वरदान मिला और उसके लिए खास हिदायत भी दी गई। Now see to it that you do not drink wine or other fermented drink। और अब देखो, तुम्हें दाख मधु या कोई और नशीली चीज नहीं पीनी चाहिए। And that you do not eat anything unclean। और तुम्हें कोई भी अशुद्ध चीज, अशुद्ध जानवर नहीं खाने चाहिए। My brothers sisters, और जैसा प्रभु ने भविष्यवाणी की, बताया, इसी तरह उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। जानते उस बेटे का नाम क्या था? उस बेटे का नाम था सैमसन, जो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही पावरफुल था, जिसने इजराइल की कौम को करीब 20 साल लीडरशिप दी। वो इतना ताकतवर था कि उसने अकेले ने एक महल के जो पिलर्स थे उनको हिलाकर महल को तोड़ दिया, और छत के ऊपर, छत के नीचे जितने लोग थे सारे मर गए। और उसने फिलिस्तीन से इजराइल की कौम को आज़ादी दिलाई। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस माता का नाम कोई कहीं पर बाइबल नहीं है। हम सैमसन के बारे में जानते हैं, सैमसन के बारे में हमने सरमन भी सुने हुए हैं, सैमसन की जिंदगी के ऊपर कई पिक्चर्स भी बन चुके हैं, मूवी बन चुके हैं, लेकिन हम उस माता का नाम नहीं जानते। सिर्फ इतना जानते हैं वो मानव नाम के एक इंसान की बेटी थी। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर उसे जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत उसके पास एंजल भेजा था, ये बताने के लिए कि वो तुम एक बच्चे को जन्म देगी। एक बार नहीं, 2 बार परमेश्वर उनसे बात की। ब्रदर सिस्टर्स, सोच के देखें, परमेश्वर उसके पति को एंजल्स नहीं भेजा, उन्होंने उस माता के पास भेजा। ब्रदर सिस्टर्स, आज शायद उस माता को हम नहीं जानते, लेकिन सैमसन की वजह से हम उस माता को जानते हैं। उसका भी प्रभाव अपने बच्चे पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत बड़ा प्रभाव था उसके ऊपर, और वो परमेश्वर की हमदो सना करती थी, परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर की उपासना करती थी। इसीलिए उसके घर में प्रभु ने ऐसा बच्चा भेजा ताकि इस माता की सुरक्षा में वो बड़ा हो सके, पल बढ़ के इतना शक्तिशाली ताकतवर बने। हालेलुया। जब इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, तो लगता है कि शायद उस जमाने में ऐसी माताएं होती होंगी, ऐसे परिवार होते होंगे, ऐसे बच्चे होते होंगे,
ऐसी माताओं का प्रभाव बच्चों पे पड़ता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजकल के जमाने में भी ऐसी कई माताएं हैं जिनका प्रभाव बच्चों के ऊपर ऐसा पड़ा जैसा शायद हर माता का होना चाहिए। आज हम ऐसी एक माता की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुजैना था। लेकिन उससे पहले प्रभु के वचन में जाके एक वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6, नीति वचन अध्याय 22 और पद 6। डेडिकेट योर चिल्ड्रन टू गॉड, अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित करो, एंड पॉइंट देम इन द वे दैट दे शुड गो, और जिस रास्ते पे उनको चलना चाहिए परमेश्वर के रास्ते से, वो उन्हें दिखाओ। एंड द वैल्यूज दे हैव लर्न फ्रॉम यू, और जो उन्होंने आपसे अच्छी बातें सीखी हैं, विल बी विद देम फॉर लाइफ, उनके साथ हमेशा रहेंगे। इसी तरह प्रभु के वचन में एक और जगह बुक ऑफ प्रोवर्ब नीति वचन 31 वर्ष 30 में लिखा है, आकर्षण छलिया है और सुंदरता चली जाती है, किंतु वह स्त्री जिसे यहोवा का भय है प्रशंसा पाएगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, ऑनर हर फॉर ऑल हर हैंड्स हैव डन, ऐसी माता ने जितने भी काम किए हैं उसके लिए उसका सम्मान किया जाए। एंड लेट हर वर्क्स ब्रिंग हर प्रेज एट द सिटी गेट, और सारे लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा। ऐसी एक माता की आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं जो करीब 200-250 साल पहले इस धरती पर आई। इसका नाम था सुजैना। सुजैना जब करीब 19 साल की थी तो उसकी शादी जिसके साथ हुई वो 26 साल का नौजवान था, उसका नाम था सैमुएल। सैमुएल एक प्रीचर था। इनके घर करीब 19 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से 9 जो बच्चे थे वो इन्फेंसी में छोटे होते ही खत्म हो गए, और जो बच्चे जिंदा रहे उनमें से एक बच्चा था वो क्रिपल था, अपंग था, और दूसरा एक बच्चा था जिसने 6 साल तक बात ही नहीं की, उसके मुंह में जुबान नहीं चलती थी। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस औरत का जो पति था, इस माता का जो पति था, वो मनी को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाता था। इस वजह से दोनों में हमेशा झगड़े रहते थे। छोटी छोटी बातों पे उनका तू तड़क होती थी, और कई बार उसका पति कितने कितने महीने सालों के लिए घर को छोड़ के भाग जाता था, और ये अकेली अपने बच्चों की देखभाल करती थी, और 9 बच्चों की देखभाल करती थी। सबसे बड़ी बात, ये खुद भी अक्सर बीमार रहती थी। इसको अक्सर कोई ना कोई रोग जकड़े रहता था। उसके पास कोई पैसा नहीं था फूड के लिए, उसके पास डेट इतना ज्यादा हो गया था कि एक बार उसके पति को भी प्रिजन में ले गए क्योंकि उसको कर्जा अपना नहीं चुका सका। यही नहीं, आप सोचते होंगे किसी इंसान के जीवन में इतने दुख कैसे आ सकते हैं। दुखों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, और दुख देखिए। 2 बार उसका घर जला दिया गया उन लोगों ने जो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं करते थे। उसके पास एक गाय थी जिसका वो दूध खुद दोती थी और अपने बच्चों का पेट भरती थी। उस गाय का भी एक दिन किसी ने आके सर खत्म कर दिया। उसके पास एक डॉग था, उस डॉग को भी किसी ने आके खत्म कर दिया। और उसके बाद जो तो छोड़ी वो खेती बाड़ी थी वो भी एक दिन आके किसी ने जला दी। हालेलुया। ऐसी माँ कैसे आदर्श माता हो सकती है, कैसे अपने बच्चों को पाल पोस सकती है। आज प्रभु अपने मैसेज में हमें सिखाने जा सकते हैं। मुसीबतें हमारी जिंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन हम अपना दृढ़ विश्वास रखें तो हम वो भी काम कर सकते हैं जो शायद कोई वो इंसान कर सकता है जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस सुदैना माता ने एक प्रॉमिस की थी अपने परमेश्वर से। जब वो जवान थी, यंग थी, तो उसने ये कहा था, परमेश्वर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा आपको समय दूंगी, प्रार्थना में रहूंगी, आपके वचन पढ़ूंगी। जितना समय मैं अपने मनोरंजन में लगाऊंगी उतना ही समय मैं आपके साथ लगाऊंगी, आपके वचन पढ़ने में, आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना करने में। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस बच्ची को पता था कि परमेश्वर के साथ के बिना हम जिंदगी की मुश्किलों को नहीं सहन कर सकते। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, when we are alone, we are alone. But when God is with us, we are a majority. My brothers and sisters, ये बात उसको पता थी। अब सोचिए, एक माता
जिसके ऊपर इतना भार हो, जितने दुख हो, उसके पास क्या समय होगा एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो उसने ये सोचा मैं मनोरंजन तो कर नहीं पा रही, और मैंने वायदा ये किया था कि जितने घंटे मैं मनोरंजन में लगाऊंगी उतने घंटे मैं परमेश्वर के साथ बिताऊंगी। तो उस समय परमेश्वर से एक वायदा किया, क्योंकि उसे पता था कि सारा दिन घर के काम करते हुए, अपने बाप को संभालते हुए, अपनी गाय का दूध होते हुए, अपने बच्चों को होमवर्क कराते हुए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं। तो उसने परमेश्वर से एक और वायदा किया। उसने परमेश्वर से ये प्रॉमिस किया कि मैं हर रोज 2 घंटे आपके साथ प्रार्थना में और वचन पढ़ने में लगाऊंगी। अब सोच के देखिए, जिस घर में 9 बच्चे हों, हमारे घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, हम शांति से बैठ के बाइबल पढ़ने के लिए कोना नहीं ढूंढ सकते। इसके पास कौन सी जगह होगी जहां बैठ कर प्रार्थना करती होगी। My brothers and sisters, when you have, जब आपके पास में इच्छा है तो परमेश्वर आपको रास्ता भी दिखाते हैं। तो इसने ये सोचा कि मैं अपना समय परमेश्वर के साथ इस तरह बिताऊंगी कि जब मैं किचन में काम कर रही होंगी, जब मैं घर के दूसरे काम कर रही होंगी, तो ये जो मेरा एप्रन पहना हुआ है, आपको पता है एप्रन वो ड्रेस है जो औरतें जब किचन में काम करती है तो ऊपर पहन लेती हैं ताकि कपड़ों पर कोई हल्दी का दाग या किसी तरह की वो चीज ना लगे। उसने अपने एप्रन को टेबरनेकल बना लिया। तो वो क्या करती थी, जब भी उसे थोड़ा भी समय मिलता था तो अपना समय निकाल के 2 घंटे प्रभु का एप्रन लेके उसको सर के ऊपर रख लेती थी और कहती थी ये मेरा टेबरनेकल है, ये वो जगह है जहां मेरे परमेश्वर मेरे से मुलाकात करेंगे। और 2 घंटे उस एप्रन में बैठी हुई प्रभु से प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी। और बच्चों को उसने ताकीद की थी कि जब कभी आप मुझे एप्रन में बैठा हुआ देखो, आपने कोई शोर नहीं मचाना, मुझे डिस्टर्ब नहीं कराना, लीव मी अलोन विद माय गॉड। हालेलुया, कितनी अच्छी सोच है। काश हमारी सोच भी ऐसी हो। जब इस तरह वो प्रार्थना करती थी, आज हम उसको किस लिए याद कर रहे हैं? क्यों उसे आदर्श माता के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का जो मैसेज है वो हमें बताता है कि ये औरत जो इतनी दिक्कतों में परेशानी में थी, आज हमारे आदर्श क्यों है? क्यों? क्योंकि ये माता, शी इज नोन एज द मदर ऑफ मेथोडिस्ट। जैसे हमारी कई शाखाएं हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन फेथ में कई डिनोमिनेशन हैं, उनमें से एक डिनोमिनेशन मेथोडिज्म। इस माता को मेथोडिज्म की माता के रूप में जाना जाता है। इस माता ने कभी कोई सरमन नहीं दिया, कभी कोई बुक नहीं लिखी, कभी कोई चर्च नहीं बनाया, पर इससे हम मदर ऑफ मेथोडिस्ट के नाम से जानते हैं। ये उस नाम से मशहूर है। दरअसल हुआ क्या था कि 18वीं सदी में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में था, वहां रिवाइवल लाने के लिए किसी ने बहुत बड़ा काम किया था। उस बच्चे का नाम था जॉन वेस्ले। उन्होंने रिवाइवल के तौर पे चर्च ऑफ इंग्लैंड में अपना काम शुरू किया, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनकी शिक्षाओं को मेथोडिज्म का नाम दिया गया और एक नई शाखा बनी, एक नई डिनोमिनेशन बनी। जो ये जॉन वेस्ले थे, उनका एक भाई था, उस भाई का नाम था चार्ल्स वेस्ले। इन दोनों भाइयों ने प्रभु के लिए बहुत सी मिलियंस एंड मिलियंस सोल जीते। और ये दोनों बेटे किसके थे? इस मदर के। इस मदर का पूरा नाम है सुज़ैना वेस्ले। और उसके जो 2 बेटे थे, जिसका नाम, एक का नाम जॉन वेस्ले था, जो प्रचारक थे, जिन्होंने बहुत से मिलियंस एंड मिलियंस सोल को जीता, और दूसरे जो चार्ल्स वेस्ले थे, उन्होंने कम से कम 9,000 भजन बनाए, हिम्स बनाए, जिनमें से बहुत सारे भजन हम आज भी सुनते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो ये मेथोडिज्म शुरू किया जॉन वेस्ले जी ने, वो इंग्लैंड से शुरू होता हुआ अमेरिका और दूसरे कई देशों में फैल गया। आज इस पूरे संसार में कम से कम 80 मिलियंस ऐसे लोग हैं जो इस डिनोमिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मिलियंस और मिलियंस लोगों को उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने सेव किया। ये बात मशहूर है कि जॉन वेस्ले जब 70 इयर्स के हो गए थे, 70 साल के हो गए थे। सोचिए 70 साल का इंसान में क्या ताकत होती है।
लेकिन 70 साल की उम्र में एक बार उन्होंने 32,000 लोगों के सामने प्रचार किया, और प्रचार करते समय उसके हाथ में ना माइक्रोफोन था, ना लाउड स्पीकर था। उन्होंने अकेले ही वो प्रचार किया, एंड ही ब्रॉट रिवाइवल अराउंड द वर्ल्ड। हालेलुया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु हमें ये संदेश दे रहे हैं, इस जिक्र करके, इस माता का जिक्र करके। हमें नहीं पता, हम किसी मोहल्ले में जाते हैं, घरों के दरवाजे बंद हैं, अंदर बच्चे हैं, माता है, पिता है, पता नहीं घरों में क्या चल रहा है, किस तरह के दुख है, किस तरह की तकलीफें हैं। लेकिन हर घर में ऐसी माताएं हैं जो आज भी उन दुखों के बावजूद वो काम कर रही हैं जो शायद हम लोग सुखों में होते हुए नहीं कर सकते। My brothers and sisters, these mothers should be called as the queen of house. आज प्रभु हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि you can become a best mom, you can become a best friend, you can become a best Christians in spite of all difficult time that you are facing right now. मुझे नहीं पता आप किस दुख में हैं, किस तकलीफ में हैं। शायद उस तकलीफ ने आपको इतना तोड़ दिया कि आप सोचते हैं कि आप कैसे एक अच्छे मसीह बन सकते हैं, कैसे एक अच्छे पिता बन सकते हैं, कैसे एक अच्छी माता बन सकते हैं, कैसे एक अच्छे भाई बन सकते हैं। लेकिन प्रभु का ये कहानी आज हमें ये सुनाती है, सिखाती है कि हम जहाँ रहेंगे हों, वो अपना एप्रन ओढ़ के, अपनी ड्रेस को ओढ़ के, उसको टेबरनेकल बना के परमेश्वर के साथ ऐसा समय बिता सकते हैं, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को बदल दे। क्योंकि प्रभु का वचन आज कहता है कि जो परमेश्वर के प्यारे बच्चों की प्रार्थना है वो बड़ी पावरफुल होती है। सो आइए इस वचन से सीखें और अपनी ज़िंदगी में प्रेयर की और वचन की महानता को सीखें, और प्रभु के इस खास दिन पे इस बात के लिए प्रभु को अपनी गिफ्ट दें, ताकि हम वो तोहफा दें कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि वो बच्चे भी बड़े होकर प्रभु के लिए बहुत बड़े काम करें और उनका भी नाम रोशन हो और प्रभु का भी नाम रोशन हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस। सवादे फिर भी ਅਸੀਂ पहुंच चुके हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ, ਮਾਤਾ जी ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ सिर झुकाते हुए प्रभु जी की प्रार्थना शामिल होइए, मिलकर लॉर्ड प्रेयर करिए। हे साडे पिता ਜਿਹੜੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सदा तुम्हारे ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आओ अपनी झोलियां आड़िए और प्रभु का वचन दे रहे हैं, जिस ब्लेसिंग साढ़े वाल आ रही हैं उन्होंने रिसीव करिए। अखा बंद करके सिर झुका के एना बरकतां कलेक्ट करके जाइए। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. पंजाबी विच यहोवा तुहानू आसीस देवे अते तुहानू सुरक्षित रखे। यहोवा तुहाडे उत्ते मेहरबान होवे अते अपनी मेहर दर्शावे। यहोवा तुहाडे उत्ते कृपा दृष्टि नाल वेखे अते तुहानू शांति देवे। असीं सारे कहने आ आमीन, आमीन। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।
आओ सारे मिल के कहिए, प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you. God bless you. God bless you.